Yeah, good morning, everyone. Last week we started with the idea of derivatives, and we started with the basic fundamental definition using first principle, followed by the list of various formulas for derivative of a function. So, quick check for the formula list. We also considered the product rule and the quotient rule. So product rule, when two functions are given, say y is given as u into v, where u and v both are the functions of x. So I call first function as say u, second as this. I can change them also. And in that case, the derivative is given by first as it is derivative of second plus second as it is derivative of first. And then we did the quotient rule. It's just a quick recap because today we are going to take more problems based on product and quotient rule, few from NCERT and otherwise also. If y is say u by v, it's a quotient term. So here we prefer to call this as first and this as second function. And in this case, the derivative is given by the following formula. स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर और फिर फर्स्ट एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. So that's a simple formula to apply. We also did consider a few questions based on them. So quick check the quotient rule. Directly I'm taking quotient rule for, so please focus on this question. Y is e power x over log x. So we need to find its derivative. So log x first function, e power x second function. As the rule says, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर कर दिया, v का स्क्वायर कर दिया और ऊपर फर्स्ट एज इट इज into derivative of second minus second as it is derivative of first. So it is always recommended that you write in a following manner. एक स्टेप बस एक्स्ट्रा लिख दिया और अब नेक्स्ट स्टेप में आप देख लीजिए डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स रहा और log x का डेरिवेटिव 1/x. Take the LCM in the numerator, that's the maximum what you can do, or take e power x common from the numerator, that is absolutely fine. Same way you quick check this question also, already discussed in the last class. Any doubt to anyone? Another question for your reference. Quick check. Because there is a gap of almost 5 days. That's the reason I'm revising what we already did in the last class. सो फॉर्मूला बस आपको प्रॉपर वे में याद होना चाहिए. तो क्या हुआ, ये इन्हें हमने फर्स्ट एंड सेकंड डिफाइन कर दिया था, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर ऊपर क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. Direct application, this is the question from your textbook only. You need to find the derivative of this function. So एक तो इसको हमने y कह दिया, ये मेरा फंक्शन हो गया फर्स्ट एंड सेकंड.
चेकआउट, सिंपल क्वेश्चन है, नीचे वाले का स्क्वायर किया और फिर फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया है इसका डेरिवेटिव ऊपर वाले का। याद रखिए a पावर n कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो a पावर n का डेरिवेटिव 0 हो गया और फिर माइनस सेकेंड एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ओपन द ब्रैकेट, और अगर कुछ लाइक टर्म कंबाइन हो रही हैं तो वो कर देंगे, नहीं तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। सर अगर हम ये लिमिट से सॉल्व करें तो आंसर कुछ और नहीं आएगा? लिमिट से कैसे करोगे? लिमिट से डेरिवेटिव का आंसर? फर्स्ट प्रिंसिपल की आप बात कर रहे हो? आंसर तो पहली बात बिल्कुल सेम आएगा, बट फर्स्ट प्रिंसिपल यहां बिल्कुल हम लगाएंगे ही नहीं। दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी कम्बरसम एंड टीडियस टास्क। तो फर्स्ट प्रिंसिपल सिर्फ बेसिक फार्मूला को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, तो सिंपल टाइप के फंक्शंस ही मिलेंगे। अदरवाइज आई विल नॉट यूज द फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर सॉल्विंग सच क्वेश्चंस। तो ओनली क्वेश्चन रूल इज द ऑप्शन विद मी। हाँ, मैं इस क्वेश्चन को प्रोडक्ट रूल से बिल्कुल कर सकता हूं। ये मैं और बता देता हूं, कोई भी क्वेश्चन जहां क्वेश्चन रूल लग रहा है आप उसे हमेशा प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं। हाउ कम? यू जस्ट राइट ये और इनटू में नीचे वाले को मैं x माइनस a की पावर -1 लिख देता हूं, so that this is my first, this is my second function, and now apply the product rule in a usual manner. That is perfectly fine, but not the limit concept here. Check this out, the direct application product rule. अब चेक करो, जैसे ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये आपको फंक्शन दिया है, इसका डेरिवेटिव निकालना था। पहले ही मैंने इसको नॉर्मल मेथड से दिखा दिया, जो यूजुअल अप्रोच क्या दिमाग में आती है। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फिर इसको बस थोड़ा ओपन द ब्रैकेट एंड सिंप्लीफाई किया, आई विल गेट माय आंसर। बट अदरवाइज check out the OR method. Before differentiation only आप open the bracket कर दो। ये मेरा क्वेश्चन था, ये open the bracket, that's it। तो अब मैं इसका डेरिवेटिव तो सिंगल स्टेप में यहां भी तो निकाल सकता हूं, तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो ये और इसका हो गया nxn - 1, फिर इसका भी nxn - 1. Simplify, of course you will get the same answer. Method कोई भी फॉलो करो, आंसर डेफिनेटली सेम रहेगा। फोर्थ पार्ट स्लाइड में शेयर कर दूंगा, आप इसको होमवर्क में देख रहे हैं। सिमिलरली ये रहा था क्वेश्चन, चेक कर लीजिए। डायरेक्ट एप्लीकेशन इन 6th पार्ट एज द क्वोशिएंट रूल। तो अलग अलग से इसका डेरिवेटिव अलग किया, इसका डेरिवेटिव अलग किया, दोनों में अलग अलग से चेक कर लीजिए क्वोशिएंट रूल कैसे अप्लाई किया गया है। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा लॉजिकली समझिए ध्यान से। बिफोर आई डायरेक्टली स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग, नॉर्मली देखो क्या लगता है, रूट को देखकर रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट होता है। मैंने कहा चलो ये कर दिया, और फिर इनटू जो अंदर लिखा है उसमें मैंने क्वोशिएंट रूल भी तो लगाना है, जो अंदर लिखा है, फिर इसका डेरिवेटिव किया। तो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी कम्बरसन प्रोसेस, और आंसर इतना सिंपल नहीं आने वाला।
तो इसीलिए 11th में ही जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज करे हैं उनकी एप्लीकेशन को समझिए यहां पर ध्यान से। डायरेक्ट फॉर्मूलाज ये तो हमने याद करे हुए हैं ना, दो फॉर्मूलाज ये वाले, बस उनको सब्स्टिट्यूट किया। फंक्शन एक्चुअल में सिर्फ ये गिवन था tan x, आंसर इज secant स्क्वायर x। Check this out, the product rule. Yes, I think the question is clear. डायरेक्ट था ये वाला। एक इसे भी देखिए, बस मैं चार्जर लगा रहा हूँ अपना लैपटॉप का, एक मिनट। So I hope this question is also clear. डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगा है। अब वो बेसिक फॉर्मूलाज याद हैं तब तो बहुत आराम से हो जाएगा। Please mark your attendance, everyone, in a chat box. So check out this question. Another simple application of product rule. अब देखिए इसमें वही, ये अलग से लिया और ये अलग से ले लिया और फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया लाइक दिस। तो वो कलर से मैंने डिफरेंशिएट करा हुआ है, वो आपको देखकर समझ आ जाएगा। तो किस तरह से हम यहां पर मूव कर रहे हैं, चेक दिस आउट। पहले इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं, फिर एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स का। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो येलो कलर से जो हाईलाइटेड है वो उसका हो गया डेरिवेटिव, और फिर जो सेकंड पार्ट है वो ग्रीन कलर वाला देख लीजिए। अगेन 2 पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a पावर x का डेरिवेटिव a पावर x इंटू लॉग a। तो बस वो याद रखना है, तो 2 पावर x इंटू लॉग 2 हो जाएगा। चेक दिस आउट, क्वोशिएंट रूल की डायरेक्ट एप्लीकेशन है एवरीवन। तो ये फर्स्ट और ऊपर वाला सेकंड फंक्शन हो गया, नीचे वाले का स्क्वायर, देन फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो इसका डेरिवेटिव सिंपली 2x का 2 हो गया और 3 कांस्टेंट है उसका 0। तो अब ये तो क्विक चेक हो जाता है भाई ये 2 कैसे लिखा है। फिर माइनस सेकंड एज इट इज into derivative of first, open the bracket and simplify,
नीचे वाला स्क्वायर ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो कीप दिस एज इट इज। Yes, direct question, quick check. So again, the direct application of quotient rule, square of denominator वो कर दिया 1 plus sin x whole square, और ऊपर डायरेक्ट लगा दिया फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड माइनस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो इसे आप अपने आप होमवर्क में पहले करके देखना एंड देन यू कैन ऑलवेज मैच योर आंसर। सेम वे दिस क्वेश्चन, सो आई विल नॉट डिस्कस दिस, ये डायरेक्ट है, आप होमवर्क में अपने आप करके आंसर वेरीफाई कर लें। यस, चेक आउट दिस क्वेश्चन। आपको डेरिवेटिव ये प्रूव करना है, अब ऑलरेडी कहा गया है कि डेरिवेटिव इसके इक्वल है। सो चेक आउट द डायरेक्ट एप्लीकेशन, क्वोशिएंट रूल, नीचे वाले का स्क्वायर और फिर फर्स्ट एज इट, ये नीचे वाला फर्स्ट है, ऊपर वाला सेकंड, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है। ओके, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। बस इसके बाद तो ओपन द ब्रैकेट, सिंप्लीफाई, यहां तक हम आ चुके हैं और यही मेरा आंसर है, राइट। बट अब क्योंकि मुझे शो करना है डेरिवेटिव एक्चुअली इसके इक्वल, इसीलिए मैंने आगे इसको फर्दर सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया यूजिंग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, साइन कॉस में चेंज कर दिया। सो अब ये स्टेप, ये सारे स्टेप्स आपके एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड हो गए हैं। सो क्विक चेक कर लीजिए इन्हें। इनफैक्ट अगर मैं इस क्वेश्चन को किसी और मेथड से सोचता, कैन यू सजेस्ट समथिंग एल्स? एनीवन? इफ यू लुक एट द एक्सप्रेशन केयरफुली, आप ऊपर वाले 1 को लिख दो tan π/4 और नीचे इसे इंटू 1 मान लो, तो ये हो जाएगा 1 की वैल्यू रख दी और ये एज इट इज। क्यों किया? इट गेट कन्वर्टेड इनटू द डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ tan a माइनस b। तो बस अगर y मेरा ये आ चुका है तो इसका डेरिवेटिव tan का हो गया secant स्क्वायर, और अंदर वाले का डेरिवेटिव, ये भी मैंने आपको सिखाना है कि इसको एक्चुअल में चेन रूल कहते हैं। तो tan का डेरिवेटिव तो डायरेक्ट कर दिया, और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव एक्चुअली π/4 का 0 और माइनस x का हो गया -1, तो -1 से मल्टीप्लाई। अब आंसर एक्चुअल में ये आ रहा है, इसका मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इन दोनों आंसर्स को सेम जस्टिफाई करना है। तो दैट यू कैन ऑलवेज डू, बट ऑफ कोर्स यहां इस आंसर को देखकर लग रहा था कि मैं डायरेक्ट ही सॉल्व कर देता, दैट इज मोर इजियर एंड कंफर्टेबल। So choice is yours, whichever method you want. Check out this question. So what we have done, आपसे कहा है y given है, इसका डेरिवेटिव बताओ when x is π/4। तो x जो π/4 है ना, उसका रोल बिल्कुल लास्ट में आएगा, लास्ट स्टेप में है,
उससे पहले तो नॉर्मल फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करेंगे, ये y है, साइन x को सेपरेट कर दिया सिंपल बनाने के लिए, बिकॉज अब मैंने क्वोशिएंट रूल अवॉइड कर दिया है यहां पर लगाना। आप क्वोशिएंट रूल बिल्कुल लगा सकते थे, बट अगर मेरा फंक्शन इतना इजी है सिंपलर फॉर्म में तो यही हो गया ना, तो अब आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। फॉर्मूले याद हैं आपको, होने चाहिए। कॉसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, एंड कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, वो लगा दिया। बस अगर कुछ सॉल्व हो रहा है कर लिया, और फिर आपसे डेरिवेटिव पूछा था एट π/4, आप x की वैल्यू π/4 रिप्लेस कर दीजिए, योर रिक्वायर्ड आंसर। सो कंप्लीट एक बार करके देख लेना होमवर्क में, मैच योर आंसर। एंड अब जो रूल हम ले चुके हैं उस पे बेस्ड एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेंगे। ऑलरेडी इट इज डिफाइंड दैट इट इज अंडरस्टूड कि ए बी सी डी हो या पी क्यू आर एस, दे आर कॉन्स्टेंट्स, और एम एंड एन आर इंटीजर्स, वो भी कांस्टेंट है अल्टीमेटली, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। सो चेकआउट से थर्ड क्वेश्चन यहां सॉल्व करा हुआ है, प्लीज चेक दिस आउट। इट्स अ डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एंड सेकेंड। बट इससे पहले एक बार ये कोई चेक कर लीजिए भाई, 1/x का डेरिवेटिव, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x² होता है। तो क्या हुआ, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ये कैसे आया इसका डेरिवेटिव, r/x प्लस s है। याद रखिए जब भी मैंने कहा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, बट लॉजिकली ये सोचिए इसका मतलब क्या था भाई, यहां वो रूल नहीं लगेगा। a कांस्टेंट है बट वो x के साथ मल्टीप्लाई है ना, तो वो बाहर आ जाएगा और ये बचेगा लाइक दिस। दैट इज इन जनरल डेरिवेटिव ऑफ a इनटू फंक्शन अगर लिखा हुआ है तो a बाहर आ गया और बचता है डेरिवेटिव ऑफ fx। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो r, अब इसकी बात करता हूं मैं, r/x है, r को बाहर आ गया और 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x² हो गया। s कांस्टेंट है, डेरिवेटिव इज 0, इसलिए मैंने यहां पर ये डायरेक्ट लिख के दिखा दिया था। Same way, fourth question in your homework. Check out following questions. Order में ही है ये, 5th, 6th, 7th है जैसे, तो 6 सारे समझ आ रहे हैं। जैसे 6 क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल, पहले ये एलसीएम लेकर ये लिख दिया y की वैल्यू, एंड देन अप्लाई दी क्वोशिएंट रूल। सेवंथ क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिए। सेवंथ में आप क्वोशिएंट रूल से बिल्कुल इसे कर सकते हैं, अप्लाई दी क्वोशिएंट रूल, बट मैंने यहां उसको थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए डायरेक्ट क्या रूल लगाया है जिससे एक्चुअल में हम कहकर चलते हैं चेन रूल। तो मैंने यहां पर चेन रूल से इसे सॉल्व किया है। तो क्या करा है, 1/x का डेरिवेटिव 1/x जैसे लिखा है माइनस 1/x², पहले तो इसका रूल लगा दिया, इनटू चेन रूल क्या कहता है, अब इसका डेरिवेटिव कर दो
और वो होता है 2ax प्लस बी। वो आप ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हैं कैसे आया होगा। चेकआउट 8th 9th 10th। 8th को यहां सॉल्व करके थोड़ा सा दिखा दिया है, बाकी दोनों होमवर्क में आएंगे। 8th क्वेश्चन चेक इट आउट, आई एम वेटिंग। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज क्लैरिफाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं ये, आपके 12th में रिपीटेडली यूज होंगे, तब तो ये बेसिक माना जाएगा। Any doubt to anyone? Direct quotient rule. Check out this 11, 12, 13th है जैसे। डायरेक्ट 13th क्वेश्चन देखिए यहां पर। इट्स अ सिंपल प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल फर्स्ट एज इट इज, इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो चेक करिए यहां पर अब एक्चुअल में मेरा चेन रूल लगेगा। वो कैसे? पहले पावर फंक्शन का डेरिवेटिव ये हो गया, एक्स पावर एन का क्या होता है? एन एक्स एन माइनस वन, तो एम एक्स एम माइनस वन हो गया। ये तो इस पावर का रोल था। इनटू में क्या होता है? अब अंदर वाले बेस का डेरिवेटिव, तो वो है सी एक्स प्लस डी, और उसका डेरिवेटिव आ गया इनटू सी। तो चेन रूल डायरेक्टली एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ये याद रखिए। बट ये क्वेश्चंस आपके तभी पॉसिबल है, और ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के ही एनसीईआरटी के, तो इसीलिए नाम नहीं दिया गया। बट दैट एप्लीकेशन वन वी नीड टू अंडरस्टैंड। और फिर क्या हो गया? प्रोडक्ट रूल लगा रहे थे ना, प्लस सेकेंड एज इट इज, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। चेकआउट इसका डेरिवेटिव ये आ गया। कुछ भी कॉमन है तो वो नोट कर लीजिए, इसके बाद तो सिंपल आ जाएगा। कुछ कॉमन, टेक इट आउट एंड योर रिक्वायर्ड आंसर। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो। यस, फर्दर एनसीईआरटी से ही चेक आउट दीज क्वेश्चंस। 16 पढ़ के देख लीजिए, बाकी आप होमवर्क में करेंगे, ये होमवर्क में डायरेक्ट आ जाएंगे। चेक आउट 16 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हेयर एवरीवन।
यस, सो क्या किया गया था यहां, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर हो गया एंड देन फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x आ गया, माइनस सेकंड एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। रोल ऑफ डेरिवेटिव इज ओवर। और अब इसके बाद तो आपको नॉर्मल कैलकुलेशन, प्लीज चेक दिस आउट, वो स्टार्ट कर लेंगे। Any doubt to anyone? Check out the another set of similar questions. 17th यहां देख लीजिए, बाकी होमवर्क में आप करेंगे। प्लीज चेक आउट 17th। Yes, so again the direct problem based on the quotient rule. नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड माने अब ये हो गया ना, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो अकॉर्डिंगली ये आ जाएगा। और फिर माइनस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसके बाद तो यू कैन डायरेक्टली ओपन द ब्रैकेट, और जैसे मैंने करा है, एक माइनस कॉमन लिया, थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में आ गया, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। वो सॉल्व करना है, फिर तो बेसिक चीजें हैं। एटीन्थ है क्वेश्चन नंबर 18। आप डायरेक्ट क्वेश्चन रूल बिल्कुल लगा सकते थे, बट मैंने ठीक है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए सीकेंड को 1 बाय कॉस में चेंज कर दिया एंड देन अप्लाइड द क्वेश्चन रूल। चॉइस इज योर्स। So 20th, 21st, 22nd, now they are direct questions, सारे आपके होमवर्क में स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये क्लियर हो रहा है, क्वेश्चन रूल, यहां प्रोडक्ट रूल आ जाएगा एज सच। अनदर क्वेश्चंस ये भी आपके डायरेक्ट हैं इन योर होमवर्क। Yes, check out next set of questions. Check out next set of questions. ये भी आपके होमवर्क में ही आएंगे। जस्ट फॉर मैंने एक से एक सॉल्व कर दिया था इस क्वेश्चन को, बाकी डायरेक्ट एप्लीकेशन है। सो आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन दीज क्वेश्चंस। आई होप दिस आइडिया इज क्लियर। 27th में देखो, पहले सिर्फ cos π/4 की वैल्यू रख दी, वो 1/√2 होती है, और फिर 1/sin को मैंने cosecant लिख दिया, सो दैट इट इज अ डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल।
फर्दर एनसीईआरटी के ही मिसलेनियस के अगेन क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क, इसे यहीं पढ़कर देख लीजिए 30th को। यस, सो ये 30th और यहाँ तक आई स्टॉप। एनी डाउट टू एनीवन, प्लीज डू क्लैरिफाई। मार्क योर अटेंडेंस वंस अगेन। Thank you, sir. Have a good day, sir. Yeah, good day. You can leave the class now. Thank you, sir. Yeah, welcome. चलिए, please leave the class fast.